Good morning, children. Today I'll explain you all the part 2 of Unit 2, Chapter 1 of your Beehive book, and the name of the chapter is Sound, the Sound of Music. In the part 1, we had learned about a little girl, Evelyn Glennie, who was a very determined girl. She was short of hearing, but no one knew about it. But her mother discovered the fact of her deafness when she was 8 years old. Despite of this impairity in herself, this girl never looked back, and just only because of her determination to lead a normal life, he want to lead the life like a normal person. So she did a lot of hard work to achieve that. She has achieved a lot in her life and never looked back. She was multi-percussionist in the world, the most popular multi-percussionist, because she has mastered over 1000 instruments. She has become an inspiration for other impaired, we can say that the handicapped children. And she always used to say that if a person with physically disability is determined, he or she can achieve any goal in his or her life. So I think, children, you must have gone through that video. Now let's start with the part 2. It's on the Shehnai of Bismillah Khan. As you can see in the picture, Bismillah Khan, he was the famous Shehnai Vadak of our country. So let's start with the introduction of the chapter. The whole life of Bismillah Khan is an example of success through sheer dedication and hard work. उनका पूरी ज़िंदगी जो है वो एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए, जो एक डेडिकेशन, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन और हार्ड वर्क उन्होंने अपनी लाइफ में किया टू अचीव व्हाट ही हैड अचीव इन हिज लाइफ. Bismillah Khan loved Banaras and played his Shehnai in many of its temples. तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको बनारस बहुत ज़्यादा पसंद था, तो और वहीं पर ही उन्होंने अपनी शहनाई बहुत से टेम्पल्स में भी बजाई है. वहाँ के मंदिरों में जाते थे और वहाँ पे बजाते थे. Belonging to a family of Shehnai players, he got a big break with the opening of All India Radio in Lucknow. वो एक उनकी फैमिली ही में सभी लोग बहुत अच्छे शहनाई वादक थे. हिज एंसेस्टर वर ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court, and his father Pegambar Baksh was also a popular Shehnai player. So because belonging to that family, he got a big break with the opening of All India Radio in Lucknow. तो वहाँ पर उनको ब्रेक मिला, अपनी शहनाई बजाने का मौका मिला in front of a big platform. He played Shehnai on the auspicious occasion of India's freedom on August 15, 1947. तो इंडिया के लिए जब बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वहाँ पर रेड फोर्ट पर बिस्मिल्लाह खान, वो जो इंसान थे, उनको सबसे बड़ा मौका मिला था इंडिया की फ्रीडम सेलिब्रेट करने का ऑन अगस्त 1947. ही गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड. नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड ही गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज. हिज फिल्म करियर वॉज ब्रीफ एज ही डिड नॉट होल्ड अ गुड ओपिनियन ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. फिल्म करियर उनका बहुत छोटा था क्योंकि वो फिल्म्स को कुछ अच्छा नहीं समझते थे. उनके अकॉर्डिंग जो फिल्म वर्ल्ड था वो उनके लिए उसकी थिंकिंग अच्छी नहीं थी. इट वाज इन 2001 that he was honored with the highest civilian award of the country, भारत रत्न. तो 2001 में उनको अपने देश में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी दिया गया, जिसका नेम है भारत रत्न. So now let's start
how do this शहनाई got the origin of शहनाई, आखिर शहनाई बनी कैसे. पुंगी, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb. एम्परर औरंगजेब ने पुंगी को बैन कर दिया था. वाई? बिकॉज ऑफ इट श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. श्रिल, कानों को चुभने वाली और जो बिल्कुल भी अच्छी सुनाई में नहीं देती थी, तो एम्परर औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया था. इनफैक्ट इट वॉज रिगार्डेड मोर एज अ नॉइज मेकर रेदर देन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और उनका मानना ये था कि वो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा कानों को चुभने वाली आवाज़ है और शोर मचाने वाला है रेदर देन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो आप अंदर तक आपको दिमाग को आपको ठंडक पहुंचाए, कानों को सुंदर सुनने में अच्छा लगे. लेकिन पुंगी एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था कि जो कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. सो देन इट वॉज मॉडिफाइड एंड परफेक्टेड बाय अ बार्बर हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. तो अब पुंगी को मॉडिफाई करा गया और परफेक्ट बनाया गया एक बार्बर के द्वारा. बार्बर ने एक नाई ने उसको करा जो किस फैमिली से बिलोंग करता था? एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से वो बिलोंग करता था. ही प्लेड इट इन द चैम्बर ऑफ द किंग. अब फिर उसने उसी मॉडिफाइड पुंगी को और अच्छे से उसको परफेक्टली उसको मॉडिफाई किया था और वहाँ पे किंग के चैम्बर में उसको बजाया. इट्स साउंड वाज सो अप्रिशिएटेड बाय द एम्परर दैट इट वाज मेड अ पार्ट ऑफ नौबत. तो जब भी कुछ भी अच्छा ओकेजन अगर नवाब के यहाँ होगा तो वो बजाई जाएगी. एम्परर को इतना ज़्यादा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो मॉडिफाइड पुंगी पसंद आई. सिंस इट वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शाह's चैम्बर by a nai, तो it came to be known as शहनाई. कैसे अब शहनाई नाम पड़ा? क्योंकि वो शाह के चैम्बर में पहली बार एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसीलिए उसका नेम पड़ा शहनाई. तो इन दिस वे शहनाई गॉट द origin. Traditionally, it was played in the temples and on every auspicious domestic occasions also. तो ज़्यादातर उस समय क्या होता था कि वो ज़्यादातर तो या टेम्पल्स में बजाई जाती थी या फिर भी कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता था घर में, कोई भी जैसे किसी बच्चे का जन्म हो गया या कुछ भी अच्छा कोई पूजा पाठ, तो तब शहनाई बजाई जाती थी. इट्स साउंड वॉज रिगार्डेड एज ऑस्पिशियस. तो जो उसका साउंड था वो ऐसा लगता था कि जैसे वो सीधा भगवान से जोड़ता है हमें, तो वो इसीलिए उसको ऐसे ही अच्छे ओकेजन्स पर ही बजाया जाता था. बट इट वॉज ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट केपेबल ऑफ क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट पेजेस. बहुत अच्छी साउंड थी शहनाई की, लेकिन उसको हमेशा ऐसा माना जाता था कि वो अगर हम शहनाई को इंडिपेंडेंटली प्ले करेंगे तो शायद उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ ना करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही बजाया जाता था. बट बिस्मिल्लाह खान ब्रॉक दिस myth. बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉक दिस myth. उन्होंने जो लोगों के दिल मन में जो भ्रम था ये उसको तोड़ा कि ऐसा नहीं कुछ भी है. बिस्मिल्लाह's birth and childhood. Bismillah belongs to the Benares Gharana. He was born in 1916 at Damron, Bihar. As a 5-year-old, he used to visit the Bihari Ji temple and sing Bhojpuri चित्रा there. तो जो 5 साल के छोटे से बच्चे थे वो तो बिहारी जी के टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चित्र गाया करते थे. और फॉर हिज मेलोडियस सिंगिंग ही यूज्ड टू अर्न अ बिग लड्डू फ्रॉम द लोकल भोजपुरी किंग. तो जो लोकल भोजपुरी किंग होते थे उनसे उन्हें बिग बड़ा सा लड्डू खाने को मिल जाता था एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि जो वो भोजपुरी चित्र सुनाते थे मंदिर में वो बहुत ही मेलोडियस होता था. एट द एज ऑफ 6 ही मूव टू बनारस. अब जब 6 साल के हुए तो वो बनारस शिफ्ट हो गए. देयर अंडर द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज मटर्नल अंकल अली बख्श ही स्टार्टेड पिकिंग अप द फाइनर न्यूसेंसेस ऑफ शहनाई. इतने छोटे से थे
अपने एक मटर्नल अंकल मतलब अपने मामा, उनकी गाइडेंस और उनकी ट्रेनिंग के अंदर, उस जिनका नेम था अली बख्श, और उन्होंने शहनाई के छोटे छोटे नोट्स और उसके बारे में जानना शुरू किया. ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गैंजेस. रिवर गंगा, बहुत मैक्सिमम टाइम, सबसे अपना पूरे दिन का मैक्सिमम टाइम वो वहीं पर बिताना पसंद करते थे, रिवर बैंक पर, और प्रैक्टिस करते रहते थे हमेशा शहनाई के अलग अलग नोट्स की. द थीम्स ऑफ हिज म्यूजिक वर डीपली अफेक्टेड बाय द साउंड्स ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, क्योंकि वो गंगा तट पर ही बैठ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे. तो जब उनका जो थीम्स थे, उनकी नोट्स के, वो मैक्सिममली डीपली अफेक्टेड बाय द फ्लोइंग वाटर, उसके जो फ्लोइंग वाटर का साउंड था उसी से ही वो अफेक्ट था, उनको वो इतना ज़्यादा पसंद आता था. So he had given a lot of memorable performances, and because of those he got a very big awards too. He got the best performer award at All India Music Conference in Allahabad in 1930. In 1930 उन्हें बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में इलाहाबाद में. देन in 2001 he won 3 awards. 2001 में उनको 3 अवार्ड मिले. कौन कौन से? पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण. ये 3 अवार्ड्स मिले उनको. और नॉट ओनली दैट, इन 2001 he was honored with भारत रत्न अवार्ड too, as I had given you in the introduction that he had got that award too. He was invited to play the Shehnai from the ramparts of the Red Fort in 1947, becoming the first to greet the independent India. So he was the first man to greet the independent India from the rampart of the Red Fort in 1947. Means कि रेड फोर्ट से उन्होंने शहनाई बजाई थी, और वो पहले इंडियन म्यूजिशियन बने जिन्होंने देश की आज़ादी को अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से ग्रीट किया था, मीन्स उसको ऑनर किया था. He won many international awards also. Not only Indian, he got the international awards also. He became the first Indian to perform at Teji Lincoln Central Hall in USA. पहले इंडियन थे वो जब उन्होंने ये लिंकॉन सेंट्रल हॉल इन यूएसए वहाँ पर परफॉर्म किया था. एंड एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो अफ़गानिस्तान में एक वहाँ पे ऑडिटोरियम है जिसका नेम उनके नेम के बाद पड़ा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो एम्परर थे वो उनसे इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने उस वहाँ के जो किंग थे ज़हीर शाह, ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस. तो इसीलिए उन्होंने अपने एक ऑडिटोरियम का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर ही रखा. Bismillah was very fond of Banarsi and Rome. He declined an offer from one of his students to settle in the USA. तो उनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने उनको ऑफ़र दिया था यूएस से सेटल होने के लिए, लेकिन वो अपनी रूट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे. वो अपने गांव, अपने देश को छोड़ना नहीं चाहते थे. एज ही वॉज नॉट विलिंग टू स्टे अवे फॉर लॉन्ग फ्रॉम बनारस एंड इट्स होली रिवर गंगा, क्योंकि वो गंगा से दूर रह ही नहीं सकते थे, वो बनारस से दूर नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया. ही वेंचर्ड इनटू फिल्म वर्ल्ड ऑल्सो. फिल्म वर्ल्ड में गए तो, लेकिन वहाँ उनका करियर बहुत छोटा था. वेरी ब्रीफ करियर ही गॉट देयर. ही गेव हिज म्यूजिक इन ओनली 2 मूवीज. हिज कंपोजिशन दिल का खिलौना है. फॉर मूवी गूंज उठी शहनाई वॉज अ चार्ट बस्टर.
तो जो मूवी गूंज उठी शहनाई में जो सॉन्ग है दिल का खिलौना है वॉज दैट एट दैट टाइम वॉज अ चार्ट बस्टर, and in that song he played his shehnai, but he could not associate himself with the artificial glamour of the film world. तो आर्टिफिशियल ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड बिकॉज वो इसको अच्छी उनकी सोच फिल्म वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छी नहीं थी. फॉर हिम म्यूजिक वॉज हिज सोल, हिज लाइफ. उनके लिए म्यूज़िक कोई बिकाऊ चीज़ नहीं थी, उनके लिए म्यूज़िक कोई खरीद फरोख्त की चीज़ नहीं थी, उनका जीवन था, उनकी आत्मा थी. तो वो उसको उस ज़िंदगी से उस वर्ल्ड से जोड़ नहीं पाए, एंड दैट्स वाई ही गॉट वेरी ब्रीफ career there. And this is all with Bismillah Khan children. I think you all must have understood this part also. Please go through the chapter thoroughly, as I used to say always, because this is the summarization of the chapter. For understanding it properly and clearly, you have to go through the chapter. Children, please do so. And if you find any kind of problem, you can send me the message or please write in the comment box. Thank you. Have a nice day.